आदिवासी समाज के ब्लड में वैसे बिजनेस नहीं है। उनका जो कीमती सामान है वो उनके ज़रूरत के मुताबिक जब बाज़ार में जाते हैं उनकी अपेक्षा के मुताबिक जो मिलता है उनसे वो लेके खुश हो जाता है। उनको ये नहीं पता लगता है कि जो सामान या जो चीज़ वो दे रहे हैं वो कितना कीमती है। फिर भी जब उनकी ज़रूरत खड़ी रहती है तब जाके जो भी दाम मिलता है वो दाम से वो बेच के चले आते हैं। तो ट्राइफेड ने ये सब देखते हुए फिर देखा कि किसी न किसी तरह से उनको बाजार जो मूल्य है पूरा मिलना चाहिए और इसलिए इकट्ठा करके एक बाजार ढूंढने के लिए और ट्राइफेड ये काम कर रहा है। उनको मार्केटिंग का काम, उनको सर्विस का काम और साथ साथ में वनोपज से जो कीमती दवाइयाँ बनने वाली है, ऐसे जो वनोपज जो मिलता है वो भी इकट्ठा करके ट्राइफेड खरीदेगा और उनका प्रोसेस करके बाजार में रख के लोगों के सामने बेचेंगे। वैसे जानते हैं पूरे समाज, पूरे देश के हमेशा हमारे आदिवासी बंधु है वो एकदम इनोसेंट है और जो भी दिल की बात है वो सही बोल देते हैं और थोड़ा कुछ उनके अपेक्षा से मुताबिक थोड़ा भी कुछ अगर ज़्यादा दिया तो वो बहुत खुश होके चले जाते हैं और नहीं है। और इसीलिए जो भी ट्राइबल की जो जितने भी आर्ट है, कला है, संस्कृति है और खान पान है वो सब कुछ बहुत ही अच्छा और हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो मैं एमडी जी को भी धन्यवाद देता हूँ। इस प्रयास से आने वाले दिनों में लोगों का ध्यान ट्राइब्स इंडिया के लिए ध्यान खींचा है और भी आने वाले दिनों में और भी आगे पहुंचाना है। तो चलो हम साथ चल के हमारे जो आदिवासी बंधु हैं उनकी जो आमदनी है वो दुगनी करने में हमारा सहयोग करें, ट्राइफेड का सहयोग करें। और इस अवसर पे पूरे ट्राइफेड के तरफ से मैं आप सर्व अतिथि गण का धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इसका कार्यक्रम में सराहनीय वाले मिशन में थैंक यू सो मच सर। और एक छोटा ये लोगो है जो हमने संवाद मंच का लोगो बनाया था। और एक और भाई साहब आगे बताओ यार। It is great honor to have Shri Arjun Munda, Honorable Minister of Tribal Affairs, and Shri Ramshin Datwa, TriFed Chairman. I want to particularly thank Honorable Ministers for their leadership to drive social and economic empowerment of approximately 100,000 million tribal communities across India. As part of the continued campaign drive launched in July, aimed at accelerating COVID-19 vaccination in tribal communities, while all the ministers who are present, our joint efforts have resulted in providing support to millions of tribal population in receiving COVID-19 vaccination. This is indeed a successful partnership, and it is
going to get stronger. I extend my special appreciation to Shri Krishna, Managing Director, TriFed, for having believed in tribal communities. Only his passion and energy would have led to over 50,000 tribal startups and enterprises. I congratulate Shri Krishna and the UNICEF Communication for Development team for conceptualizing the novel idea of tribal Sambad network that focus on 3S: Sambad, Sambad, and Samridi, reaching out to 5 million tribal communities and 600,000 forest produce gatherers. You can observe those standees which are displayed here. I'm confident that the Tribal Sambad network will serve as one alternative platform for socio-economic empowerment. Number two, enhance efficacy of services. And number three, promote people-centric dialogue communication. In short, a strong alternative platform for social mobilization too. The Tribal Sambad network is very much in line with Honorable Prime Minister's message, Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, or Sabka Prayas, which stresses on importance of promoting equity agenda and reaching out to the last mile population. The Tribal Sambad network is very close to UNICEF's equity-focused agenda to child survival and development to achieve SDGs. In everything we do, the most disadvantaged children have priority that is also in line with Prime Minister's message on enhancing access of poor to the resources of the country. So the partnership with TriFed under the leadership Honorable Minister and TriFed Managing Director will always remain significant to UNICEF. I'm confident this Tribal Sambad network will be considered to take not only the agenda of economic empowerment, but also drive social empowerment of tribal communities, mitigate the risk of ongoing COVID-19 pandemic, especially the protection of every life and the continuity of livelihood activities. UNICEF is committed to provide our continued support through our on-ground partners, community-based organizations, and volunteer network across 14 states in India. We'll work together with multiple departments, district administrations, for increased visibility of messages and strengthening this platform, of course with the support of tribal structures. To be part of this historic launch of Tribal Sambad network, and together we can catalyze our investments for their empowerment. Dhanyavad. Thank you very much. अब आज का उसको इसमें सम्मानित किया गया है सर, और माननीय प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रपति महोदय का, उपराष्ट्रपति महोदय का और आपका और हमारे अध्यक्ष महोदय का और सभी एमओएस का इसमें बहुत सहयोग और समर्थन रहा है। तो ये पुस्तक एक डॉक्यूमेंट है जो वंदन की सभी प्रक्रियाओं को इसमें समाहित करते हुए इज अ पब्लिक रिपोर्ट फॉर द पीपल। ट्राइफेड के इस
कार्यक्रम के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। और इस अवसर पर हमारे ट्राइफेड के चेयरमैन राम सिंह राठवा जी, हमारे यूनिसेफ कंट्री हेड मिस्टर किमोरा जी, हमारे ट्राइफेड के प्रवीण कृष्णा जी, यहाँ उपस्थित यूनिसेफ, ट्राइफेड और जनजाति आदिवासी के बीच में कार्य करने वाले वैसे सभी महानुभाव, हमारे पीआईबी के डायरेक्टर नानू सिंह जी, पूरे मीडिया के बंधुगण, मित्रों, देवी व सज्जनों, मैं इस बात के लिए ट्राइफेड के पूरे को बधाई देता हूं कि आज बहुत सारे महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से ट्राइबल के बीच में, जनजाति आदिवासी समुदाय के बीच में यूनिसेफ के साथ मिलकर संपर्क यानी संबंध, संवाद और समृद्धि, इस दिशा में कैसे प्रमुख भूमिका निभाई जाए इसकी रूपरेखा तय की गई है, जिसको आपने प्रस्तुति के माध्यम से, प्रेजेंटेशन के माध्यम से देखा। इसके साथ साथ ही एक पुस्तिका का विमोचन हुआ, ट्राइबल बंधन। इसमें ट्राइबेस्ट की पूरी गतिविधियों की जानकारी दी गई, एमएसपी, एमएफपी के बारे में, MIS, जिसमें आप सुदूरवर्ती गांव में रहने वाले कोई भी गैदरर यदि अपने उत्पाद को बेचता है तो ऑन टाइम यानी रियल टाइम डेटा आप देश के किसी हिस्से में भी, दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठकर MIS के माध्यम से देख सकते हैं। उड़ीसा से संबंधित एक पुस्तिका का भी विमोचन हुआ है। उड़ीसा के जनजातीय और जनजातीय क्षेत्रों के प्रगति के क्षेत्र में कैसे और बेहतर प्रभावी भूमिका सुनिश्चित की जा सकती है और उसमें क्या क्या नए आयाम जोड़े जा सकते हैं। जिस तरीके से देश में 10.5 करोड़ आबादी के बीच में प्रभावी कार्यक्रम के माध्यम से सीधे हम उन्हें जोड़ सके और यह सुनिश्चित हो कि वह 10.5 करोड़ जन जो देश के सुदूरवर्ती इलाके में अपने सांस्कृतिक विरासत को लेकर, अपने कलात्मक जीवन को लेकर आदिकाल से अपने विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं, रह रहे हैं। जिस ढंग से आज आप देख रहे हैं कि एक औपचारिक करार भी हुआ है यूनिसेफ के साथ कि आगामी दिनों में हम इस लक्ष्य को कि संपर्क, संबंध, संवाद और समृद्धि को कैसे सुनिश्चित करने में सफल होंगे। इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम सिर्फ आनंद और उत्सव मनाने के लिए नहीं है। 25 वर्ष के बाद हमारा भारत जनजातीय समाज के बीच में, जनजातीय क्षेत्र के बीच में और जनजातीय कला एवं संस्कृति एवं उनकी जीवंतता के जो मूल शक्ति है उस क्षेत्र को संजोते हुए कितना सफल और किस तरीके से हम उसे देखना चाहते हैं। आज हमारे आंखों में वह एक भूख दिखना चाहिए। हम 25 साल के बाद कल्पना को साकार करने के लिए अपने अंदर भूख कैसा पैदा करें, लेकिन हमारा मन की कल्पना एक ऐसा भूख के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि 25 साल बाद यानी 100 वर्ष जिस दिन पूरा करे तो भारत वैश्विक नेतृत्व करने की पूरी क्षमता अपने अंदर पैदा करने में और दिखाने में सफल हो। और वो तभी सफल होगा
जब हम इन क्षेत्रों के उस स्पंदन को, उस शक्ति को, उस ऊर्जा को, उस क्षमता को सही तरीके से उभारने में सफल हो। कोरोना 19 ने बता दिया कि आपको सबसे अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता है। जब वातावरण प्रदूषित हो जाता है तो वो ऑक्सीजन हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता बन जाती है। और वो ऑक्सीजन को बनाने वाले केंद्र बिंदु में बैठे हुए लोग हैं। वो पेड़ के नीचे यदि बैठे हुए लोग हैं तो उसको इस रूप में नहीं देखना चाहिए कि वो इलाका पिछड़ा या वो पिछड़े हैं। पिछड़े हम हैं जो हम उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे जीवन के लिए उसके साथ जीना कितना महत्वपूर्ण है। और इसी स्पंदन के साथ हम ट्राइबल एरिया में लगातार इस औपचारिकता के साथ कार्य न करें कि हम नौकरी में हैं और हम अपना दायित्व निभा रहे हैं पेपर प्रोग्रेस करके। पेपर भी नहीं मिलेगा बाद में, क्योंकि पेपर भी उसी से बनता है। तो हम इस औपचारिकता के साथ नहीं, बल्कि हम हमेशा औपचारिक दायित्व के साथ अनौपचारिक ढंग से अपने कृतित्व के बल पर यह सुनिश्चित करें कि हम सब जिम्मेदार लोग, यदि हमें कुछ कार्य करने का मौका मिला है तो कार्य दिखाने का मौका हमें खुद से प्रस्तुत करना चाहिए। इसी संवाद के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।